Guten Tag, Dashitele Shugiyu. Your Holiness, I extend my warmest and deepest greeting and respect to you for this occasion. We are very honored to spend the morning with you, learning and speaking about our today's topic, Tibetan culture and its potential to contribute to peace. Thank you very much for joining us today. I would also like to thank our audience for being with us at this early time in the morning. Here in Germany, it is 5:30 a.m. right now. 50 Tibet supporters and Tibetans from Germany, Switzerland, Austria are with us at this occasion, and many more are watching worldwide on various digital platforms. My name is Tenzin Söchbauer, and I'm the Executive Director of Tibet Initiative Deutschland, also known as TID. इसको TID TID is भी the कहा biggest जाता है। German Tibet निश्चित support group विशद founded के एक 32 तिब्बती ग्रुप में years एक ago तिब्बती महिला की and dedicated तो to protect Tibetan TID culture 32 साल and पहले to स्थापित raise एक awareness तिब्बत for the सहायता cause समूह and और faith तिब्बती of Tibetan people. समूह की रक्षा करने As a और तिब्बती Tibetan लोगों of के हितों mixed की heritage जानकारी and as a जागरूकता proud बढ़ाने के लिए daughter समर्पित of a है। Tibetan woman मिश्रित who has विरासत been an के एक advocate तिब्बती for ग्रुप Tibet में और एक since I तिब्बती can महिला की remember, गौरवान्वित I feel बेटी के रूप especially में blessed जैसा कि to मुझे याद है moderate तिब्बत this के लिए very प्रवक्ता important रही है। topic मैं and to विशेष रूप host से this event इस with बहुत you, Your महत्वपूर्ण Holiness. विषय को मॉडरेट करने के Your लिए Holiness, I धन्य would महसूस कर like to रही हूँ। request you now to please share with परम us पावन जी, मैं your आपसे view अनुरोध and your करती हूँ कि opinion तिब्बती on संस्कृति how किस प्रकार Tibetan बदलाव ला culture सकती है और can एक make a difference शांतिपूर्ण and और contribute विचारशील to a वैश्विक peaceful समाज में and योगदान कर mindful सकती है। global इस बारे में society, अपने विचार और अपनी especially राय in these current देने times. की कृपया After साझा the करें, teaching, विशेष रूप से we will वर्तमान have some समय के लिए। questions आपके and we would उद्बोधन be के बाद grateful हमारे to पास hear कुछ your प्रश्न answer. होंगे और हम Thank आपके you. प्रश्न सुनने के आभारी होंगे। Now, indeed, I'm very happy. This is some discussions तो आज with some German friends. कुछ जर्मन मित्र लोग हैं, उनके साथ My- साथ बातचीत करने का जो अवसर Since मिला है my childhood, वो बहुत ही खुशी का German, पल है। something very close in my तो mind. मेरे बचपन से I ही think one मेरे reason, मन मस्तिष्क में ही जर्मनी के लोग मेरे German- बहुत ही नज़दीक रहे हैं। First World War, Second World तो War, आप इतिहास के तौर many पर देखें countries कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय joined विश्व the युद्ध, attack. तो इन्होंने जो है साथ Germany. साथ जर्मनी पर आक्रमण किया। So, I have some special तो इसलिए sort of say, feeling. तो मेरे पास कोई विशेष प्रकार के Then, एक फीलिंग है, of course, एक सोच है। the Mr. Ashnader तो आस्टनाथर Henry Harrer. और हेनरी हाड़ा, In Tibet, usually we call these two persons German. तो तिब्बत में हम इन दो लोगों को जर्मन के नाम से जानते हैं। Actually, Abshnata, I have no personal. तो आस्टनाता इनके साथ साथ हमारे साथ कोई व्यक्तिगत Hara संपर्क नहीं था, is लेकिन a हारा very की अगर close बात friend करूं of mine. तो वो मेरे काफ़ी नज़दीकी मित्र थे। My broken English, first let's start to learn from him. तो जो भी मैं अपनी Later टूटी I फूटी noticed भारतीय जो his अंग्रेजी own भाषा English बोल very पा रहा poor. हूँ तो मैं उनसे सीखा। फिर बाद में मैंने जाना So कि logically, उनकी भी जो the लैंग्वेज थी, teacher जो अंग्रेजी भाषा थी, वो भी कमज़ोर थी। broken English. So तो जो me टीचर हमारे as a थे, student, तो वो जिनकी that भाषा भी by the टूटी फूटी teacher, थी, my तो फिर my मेरी English भी also very उसी broken प्रकार से English. मेरी भी अंग्रेजी बहुत ही टूटी फूटी अंग्रेजी है। So then, since my young age, I know Deutschland. तो बचपन से ही मैं डच लैंड को जानता हूँ या उससे परिचित हूँ। And then I really admire तो इसके बाद में German people. See, First World War, तो मैं जर्मन लोगों से by many प्रथम विश्व युद्ध से other nations, देख रहा हूँ including कि America. अमेरिका हो चाहे And अन्य, Second तो World उसमें War, कोई also you see, और द्वितीय विश्व युद्ध से अगर आप देखें, including America, you see, फिर अमेरिका को साथ साथ देख लें आप, German. तो अमेरिका ने एक प्रकार से जो जर्मनी को हराया था। So I have some kind of feeling. तो मेरे पास एक When I कुछ look फीलिंग्स हैं, कुछ विचार हैं। German in Central Europe,
तो जब मैं उनको Small. सेंट्रल यूरोप में उनको देखता हूँ तो उनकी संख्या एक Then सूक्ष्म है, कम है, very big. और अमेरिका So I काफ़ी बड़ा है। It seems to see First World War, Second World तो War. ऐसा लगता है कि seems to प्रथम see विश्व युद्ध, little bit द्वितीय bully विश्व युद्ध, तो एक प्रकार से लोगों को one comparatively smaller country एक प्रकार से in एक Central Europe. जो कि सेंट्रल यूरोप के हिसाब से अगर हम देखें उसमें उसकी I have तुलना some अगर special हम करें connection. तो उसके साथ feeling मेरे संबंध रहे हैं, अच्छे Deutschland. संबंध रहे हैं डचलैंड के साथ साथ। So मेरे I'm पूर्व से ही very संबंध happy संपर्क रहा है। तो see मैं having this अपने opportunity. आज जो अवसर प्राप्त some हुआ है, discussions. आपके साथ साथ वार्ता करने का अवसर प्राप्त हुआ Then, है, उसके लिए मैं प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ। These two nations, तो ये जो जर्मन और Germany and Japanese, और जो जर्मन के लोग हैं और जापान के लिए जो लोग हैं, I think after World War, तो जैसा कि this is real peace movement मैंने देखा कि जब विश्व युद्ध in के both बाद these इन countries, दोनों देशों में बहुत बड़ा शांति के especially प्रति Japanese, एक आंदोलन चला, suffer खास करके कि nuclear weapon, जापानीज लोगों को So you जो see these nations जो न्यूक्लियर जो हथियार थे because उसका सामना too करना much पड़ा। suffering. तो ये स्वाभाविक है You कि see, they are from युद्ध की deep वजह से बहुत ज़्यादा want मुश्किलातों का हल genuine peace, सामना करना world पड़ा। peace. तो उसके परिप्रेक्ष्य में एक सच्ची शांति की Both आवश्यकता जैसी Deutschland थी। and Japan तो दोनों certainly जो डचलैंड और जापान दोनों की have स्थिति ऐसी रही है। great potential तो इनके दोनों में एक क्षमता है, दोनों में or contribution ऐसी for peaceful कि world. निश्चित रूप से एक शांतमय विश्व के लिए So I'm कार्य very कर happy सकते हैं, उनमें क्षमता है। having this opportunity. तो आज जो अवसर मुझे मिला है उसके लिए मैं So बहुत then- ही खुश then हूँ। here, the Tibetan culture तो आज जहाँ and तक its जो potential जो तिब्बती to contribute to peace. संस्कृति और उसके क्षमता शांति के लिए कैसे Tibetan लाभदायक culture. हो सकती है, ये जो विषय दिया गया है। Actually, I think our own culture तो मुझे लगता है कि ये More or हमारी less we अपनी are nomads संस्कृति है। तो और संस्कृति जो है ज़्यादातर तिब्बती लोग एक not प्रकार much से complicated, जो नोमैड्स रहे हैं, but they जो the भेड़ 7th बकरी पालन century, करने जानवर पालन करने वाले first लोग king, रहे हैं। तो आप सेवेंथ Tibetan शताब्दी में देखें तो वहाँ के जो प्रथम राजा see, he married है ना इसमें, with Chinese princess. तो उन्होंने चीन की राजकुमारी However, के साथ his mind very शादी की, independent. लेकिन उनकी जो सोच विचार थी जो he- बिल्कुल साफ थी, एक प्रकार से स्वतंत्र रूप से थी। We Tibetan should have our own, और उनका मानना था कि हम तिब्बतियों की अपनी लिपि होनी चाहिए। so not copy from Chinese. तो उसको चीनी लिपि से उन्होंने Sometimes I jokingly नहीं tell अपनाया। तो कभी कभी मैं naturally, मजाक के रूप में कहता हूँ the 7th कि- century King Songzhen Gampo कि 7वीं शताब्दी के राजा सोंगसेन गाम्पो, enjoy, I उन think, Chinese wife तो उन्होंने शायद and चीनी जो naturally महिला Chinese को food. स्वीकार किया, और निश्चित But रूप से as far as चीनी जो भोजन Chinese था वो भी उनको language, पसंद letter होगा। is concerned, लेकिन he found too complicated. जहाँ तक अक्षरों की अगर बात की जाए, लिपि की बात की So जाए, तो he चीनी decide, जो लिपि थी वो we शायद should कठिन create होगी या our फिर own बहुत ज़्यादा ये एक प्रकार से क्लिष्ट थी। or copy इस- from तो इसलिए उन्होंने Devanagari. भारतीय देवनागरी alphabet. लिपि का आधार बनाकर तिब्बती quite लिपि का wise. निर्माण करवाया। तो ये काफ़ी So एक since प्रकार से बुद्धिमत्ता 7th वाला काम century, था। तो the 7वीं first शताब्दी king से लेकर के Songtse Gampo जो कि प्रथम already राजा did सोंगसेन गाम्पो was से lay down creation of our own script. तो उन्होंने खुद कहा कि हमें then अपनी 8th century, जो लिपि है उसका निर्माण करना चाहिए उसकी। the Tibetan king Chisung Dezen तो फिर उसके बाद 8वीं he शताब्दी में want to जो राजा ठिसुंग देसेन, establish Buddhism तो वो not from तिब्बत China, में बौद्ध धर्म की but स्थापना directly करना from चाहते थे। India. तो वो चीन से नहीं, जबकि and प्रत्यक्ष at रूप that से time, भारत से चाहते थे कि भारत से तिब्बत में famous बौद्ध धर्म पहुँचे। best sort तो of उस समय Buddhist institution in जो उस समय India भारत में सबसे श्रेष्ठ जो was विश्वविद्यालय था, Nalanda Institution. बौद्ध धर्म का जो So he विद्यालय होता था invited वो नालंदा था। almost top master of Nalanda
institution, Shantarakshita. तो उन्होंने जो कि नालंदा से आचार्य शांतिरक्षित को बुलाया। Reached Tibet. He noticed. तो जब शांतिरक्षित जी तिब्बत में पहुँचे So instead तो of उन्होंने कहा कि आपकी अपनी मूल जो लिपि है, तो इसलिए आपको पाली या संस्कृत इनको पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं है। तो आपको चाहिए कि आपकी भाषा है, आपकी लिपि है, तो जो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं or Pali language, जो संस्कृत में हैं, तिब्बती में हैं, उनका अनुवाद करना चाहिए। translation. तो उन्होंने जो अनुवाद पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। Even you see mentioned to me, तो कुछ विद्वानों ने मुझसे कहा Shantarakshita himself, कि शांतिरक्षित in spite his जो कि age, जैसे कि उनकी उम्र को देखा जाए tried to learn तो Tibetan. उम्र के हिसाब से भी उन्होंने तिब्बती भाषा को सीखने का प्रयास किया। हालांकि काफ़ी वृद्ध थे, फिर भी उन्होंने प्रयास किया। Then, through centuries, तो उनके मार्गदर्शन, उनके आदेश के अनुसार कई शताब्दियों तक तिब्बत के जो विद्वान थे, जो छात्र से शोधार्थी थे, उन्होंने learn some Sanskrit. जो संस्कृत को सीखा, पाली को सीखा, फिर उनका तिब्बती भाषा में अनुवाद किया। तो इस प्रकार से हम देखें कि जो अनुवादित ग्रंथ हैं, Buddha's जो भगवान बुद्ध की जो त्रिपिटक हैं, वो 100 के आसपास हैं। फिर जो टीका है that is Indian masters, या सूत्र जो शास्त्र कहें, तो लगभग जो भारतीय विद्वानों के द्वारा उनकी रचना की गई वो 200 से अधिक हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों में देखें, सूत्र और शास्त्र की संख्या को देखें तो 300 से ज़्यादा our own script. जिल्दों में है, 300 से ज़्यादा वॉल्यूम्स में है, जो कि तिब्बती भाषा में अभी उपलब्ध मिलते हैं। Beginning of Tibetan unique cultural तो इसको heritage. देख सकते हैं कि एक तिब्बती एक जो विशेष प्रकार की सांस्कृतिक विरासत थी, उसको रख रखाव कर पाए। Scholars, तो आप प्राचीन and including तिब्बती विद्वानों को देखो, वहाँ के राजाओं को देखो, Chinese scholar, तो उन्होंने भी Indian चीनी scholar, जो चीनी विद्वान थे, भारतीय विद्वान थे, उनमें तुलना की तो उन्होंने पाया कि जो क्या चीज़ हम ले सकते हैं, जो बेहतर क्या हो सकता है, उसको उन्होंने स्वीकार किया। India, we usually use to describe Indian ancient time, truly our teacher. तो हम लोग मानते हैं कि प्राचीन समय में भारत हमारा एक प्रकार से गुरु रहा है। और कभी कभी मजाक के तौर पर भी कहता हूँ कि आधुनिक समय में ऐसा लग रहा है कि हमारे जो प्राचीन जो शिष्य हुआ करते थे, अर्थात तिब्बती जो लोग होते थे, वो अब एक प्रकार से गुरु बन गए हैं। ज्ञान के क्षेत्र में देखा जाए, बौद्ध धर्म के ज्ञान में देखा जाए, तो वो गुरु के रूप में बन गए हैं। ये मजाक के तौर पर मैं कहता हूँ। Eventually we develop our own script. तो हम लोगों ने अपनी जो लिपि है उसको ईजाद किया, भाषा को बनाया, अनुवाद किए। So then eventually, you see, Tibetan, before Buddhism reached, just a nomad. तो तिब्बत में जब बौद्ध धर्म पहुँचने से पहले तिब्बत के लोग ज़्यादातर Truly produced जो कि नोमैड्स थे, lot of great एक प्रकार से पशुपालन करने वाले लोग थे। scholars. फिर उसके बाद बहुत सारे लोग जो कि विद्वान बने, भारत में आए, अध्ययन किया। Buddhist philosophy, तो आज का समय में अगर मैं देखूं कि बौद्ध धर्म के दर्शन की अगर बात करें, तर्क की अगर हम बात करें, and Buddhist psychology, और बौद्ध मनोविज्ञान की अगर मैं बात these करूं, subjects, we Tibetan तो हमारी have best knowledge. तो हम तिब्बतियों के पास इसके बारे में एक प्रकार से श्रेष्ठ ज्ञान है। Buddhist brothers, sisters, who follow तो हमारे सामान्य जो बौद्ध भाई बहन हैं, चाहे वो जो पाली परंपरा को जो पालन करते हैं, वो तर्क का उतना उपयोग नहीं करते हैं। even Chinese Buddhist, तो यहाँ तक कि चाइनीज बौद्ध लोगों के बारे में भी कहूँ, वो भी लगभग समान हैं। tradition, तो वो तर्क का या न्याय उसका अभ्यास नहीं करते हैं, चाहे भले ही वो संस्कृत परंपरा अर्थात नालंदा परंपरा को मानने वाले हों। as a Buddhist, respected Buddhist, तो हमारे सम्माननीय चीनी जो बौद्ध भाई बहन हैं, वो ज़्यादातर अध्ययन पर ध्यान नहीं देते हैं, Buddhist logic, और ख़ास करके जो प्रमाण है, जो न्याय है,
उसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम तिब्बती लोग इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। So now today, as far as Buddhism is concerned, तो आज के समय में अगर बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो हमारा जो ज्ञान है वो एक प्रकार से परिपूर्ण है और श्रेष्ठ है, ऐसा हम कह सकते one हैं। unique thing is, और इसकी खासियत ये है since we following Nalanda tradition, कि हम लोग जब नालंदा परंपरा को मान रहे हैं तो हमारी केवल मान्यता ही नहीं है, केवल बौद्ध धर्म को मान लें या मान्यता के रूप में रखना उतना मात्र नहीं है, उसका परीक्षण करते हैं, उसका एक प्रकार से आकलन करते हैं। तो तथागत बुद्ध ने खुद कहा है कि मेरे शिष्यों, मेरे विद्वानों और भिक्षुओं, just a faith, तो मेरे वचनों को आप श्रद्धावश मत मानिए। मुझ में आपकी श्रद्धा इसलिए मेरे शब्दों को मान रहे, ऐसी बात नहीं है। आपको अध्ययन करना चाहिए, आपको तर्क करना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। centuries, तो हम तिब्बती लोग पिछले कई शताब्दियों से, कई सैकड़ा वर्षों से study, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। also you say practice meditation. तो हालांकि हम Buddhist लोग brothers and sisters, जो ध्यान भी करते हैं, we much pay attention लेकिन for फिर भी study. हम लोग अध्ययन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि चीनी भाई बहन ज़्यादातर ध्यान और पर ध्यान देते हैं, उसी प्रकार से हम लोग ज़्यादातर अध्ययन पर ध्यान देते हैं। firstly, तो हम लोग root text जब अध्ययन करते हैं तो मूल जो मूल ग्रंथ हैं उसको हम लोग कंठस्थ करते हैं। जैसे कि मैं अपना खुद उदाहरण दूं, मैं जब 6-7 वर्ष का था तब से मैंने एक प्रकार से उनको कंठस्थ करना शुरू किया। महत्वपूर्ण जो ग्रंथ थे उनको कंठस्थ in किया। Tibetan language. Then I think one quite unique thing is we Tibetan, we develop the special technique. तो हम लोगों ने एक तिब्बती लोगों ने एक विशेष व्यवस्था की, जिसको डिबेट आपने देखा होगा, आप लोग शास्त्रार्थ करते हुए विषयों को देखा होगा। ये विशेष है, Thai tradition, एक हटके है। not much. And Chinese तो इसमें जो थाई परंपरा हो चाहे चाइनीज परंपरा हो, उसमें we call जो शास्त्रार्थ करने की व्यवस्था नहीं है। तो छबा छिसेंग ने इस व्यवस्था को किस प्रकार से शास्त्रार्थ करना चाहिए like this. उसकी उन्होंने शुरुआत की। तो आपने देखा होगा कि तिब्बती लोग जब शास्त्रार्थ करते हैं तो एक ताली जैसी बजती है, जैसे परम पावन जी दिखा रहे हैं। They really तो उस प्रकार के व्यवस्था much enthusiasm. अन्य And after परंपराओं, अन्य जो हमारे बौद्ध देश हैं उसमें नहीं है। feel तो आपने देखा होगा जब हथेली है और जो हमारे तलवे हैं वो जो उसमें दर्द होने लग जाता है, इतना ज़्यादा डिबेट करते, इतना ज़्यादा वो अभ्यास करते हैं। since I have lot of sort of connection, Buddhist scholars from different countries. तो मेरा जहाँ तक बौद्ध विद्वानों के साथ संपर्क की बात है तो विश्व के कई देशों के विद्वानों के साथ है, बौद्ध विद्वानों के साथ है। लेकिन जब तुलना में करता हूँ कि जो तिब्बती विद्वान हैं उनका जो ज्ञान है, जो गहराई है, वो बहुत ही ज़्यादा है। both तो हम लोग समत और विपश्यना इन दोनों को साथ साथ रखते हैं, दोनों का अभ्यास करते हैं। quite unique. तो ये एक प्रकार से विशेष है, खास है। Tibetan Buddhist tradition. तो जो तिब्बती बौद्ध परंपरा को अगर हम देखें, We not only practice compassion. तो हम लोग केवल करुणा मात्र का अभ्यास करें ऐसी बात नहीं है। हम लोग अपने मस्तिष्क का भी अभ्यास करते हैं, तर्क का अभ्यास करते हैं कि किस प्रकार से जांच पड़ताल के माध्यम से हम धर्म को समझ सकते हैं। Great potential. तो हम कह सकते हैं कि तिब्बती बौद्ध परंपरा जो है उसमें एक बहुत बड़ी क्षमता है। Also, to make contribution regarding और निश्चित रूप से जो शांतमय विश्व की जब बात करें so our way उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। intellectually. तो हम लोगों का जो तरीका है वो श्रद्धावश है, ऐसा बात नहीं है, वैसी बात नहीं है। हम पूरा सोच विचार के माध्यम से, तर्क के माध्यम से Inner peace. हम आंतरिक जो सोच है, जो शांति है, उसको Very easy बना to सकते explain हैं। to other people. और इसके साथ साथ दूसरों लोगों के साथ भी आसानी से, तार्किक तरीके से, प्रामाणिक तरीके से साझा कर सकते हैं।
we try to make contribution as much as possible. तो हम लोगों ने कोशिश किया है, कोशिश कर रहे हैं कि आंतरिक शांति के माध्यम से विश्व में शांति कैसे ला सकते हैं। Faith, केवल ये श्रद्धा वाली बात हो, आस्था की बात हो, ऐसी बात नहीं है। जहाँ श्रद्धा और विश्वास की बात, ये आपके व्यक्तिगत विषय हैं। और लेकिन ज्ञान की अगर आप बात करें, प्रज्ञा की अगर बात करें, तो ये सभी लोगों के लिए समान है, सामान्य है। non-believer, तो यहाँ तक कि जो they also want peace of mind. किसी भी जो एक प्रकार से नास्तिक हैं, So जो किसी भी परंपरा को all नहीं these मानते हैं, उनको भी मन की शांति की आवश्यकता है। mentally तो जितनी भी much समस्याएं sort of हैं, disturbed, वो हमारे then मन में happen. एक बुराई होने की वजह से, Basic मन human nature, I दुखी always होने की is वजह से mentioning, होता है। we like many other animal तो उदाहरण के रूप में from the beginning कि जानवरों को भी we देखें, अन्य जानवरों को भी देखें। grown by mother's affection. और मैं अक्सर यही कहता हूँ कि हम Without सभी the लोग mother's affection, माँ बाप के प्रेम से, खासकर माँ के प्रेम cannot survive. के सानिध्य में बड़े That is the seed. पले बड़े हैं। compassion. बिना उनके हम शायद जीवित नहीं रह सकते problem. थे। तो यही एक करुणा का एक बीज जैसा है, वहीं से प्रारंभ होता है। Education. तो So-called इसलिए modern education. तो जो शिक्षा की जब बात आई, Not much खास pay करके attention. आधुनिक शिक्षा की अगर बात करें, तो उसमें जो हमारे आंतरिक inner मूल्य peace, हैं, जो these things, आंतरिक शांति है, इसके बारे में जोर नहीं Those देते हैं। religious believer, तो केवल God, धर्म के God, बारे God. में, धर्म के मान्यताओं के बारे में तो यही मानते हैं कि हाँ, जो भी है ईश्वर के द्वारा So है। now, in modern education तो field, जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, How to develop उस क्षेत्र में भी peace of mind, हमें ये कोशिश करना चाहिए कि किस प्रकार से हम Because that is very जो मन की शांति है, जो necessary. मानसिक शांति है, उसको कैसे लाया even जा to सके। healthy body, peace of mind, very important. Constant anger, तो इसलिए destroy, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी मन की eventually शांति बहुत ही our महत्वपूर्ण है। physical health, अगर आप निरंतर क्रोधित So, रहेंगे, तो हमारे जो even शरीर है without उसको भी नुकसान possibly पहुंचता है। religion, simply for health. तो बिना धर्म को माने भी आप अपने Peaceful स्वास्थ्य के community. बारे में सोचें, शांतिमय समाज के बारे में As a सोचें। Buddhist sort of way of approach. तो जो बौद्ध धर्म की peace of mind व्यवस्था है, is बौद्ध something धर्म का very तरीका है कि किस प्रकार से So, मानसिक शांति को हम ला सकते हैं। Whether तो बौद्ध believe धर्म religion or not, की जो व्यवस्था है वो religion or काफ़ी not, महत्वपूर्ण that's है। individual. तो हालांकि अगर आप किसी धर्म को नहीं भी मानते हैं, तो ये आपका व्यक्तिगत But peace of mind एक is प्रकार से entire अधिकार है। humanity लेकिन मन की जो need शांति है, peace of mind. वो संपूर्ण विश्व को So, जरूरत है। in that विश्व के respect, सभी लोगों को certainly, इसकी आवश्यकता है। you see, we can make certain contribution. तो निश्चित रूप से हम last कुछ few decades, सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। I also had तो पिछले कुछ sort दशकों of से very close मेरा connection, जो संबंध है discussion वैज्ञानिकों के with साथ the रहा modern है, scientists आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं उनके साथ and how to अच्छा develop peace संपर्क of रहा है। और बातचीत हुआ कि किस प्रकार से हम how to tackle मन की शांति को our प्राप्त कर anger, सकते हैं, हम अपने क्रोध को fear, कैसे समझ सकते हैं, suspicion, जो भय, क्रोध इत्यादि हैं उनको हम कैसे जान सकते हैं। according इनके Indian बारे में sort वार्ता of हुई है। or tradition, secular, तो भारतीय not परंपरा के आधार पर देखें, जो not sort of जो व्यवस्था के अनुसार religion देखें, with religious जो कि belief, धर्मनिरपेक्ष की without बात करते belief, हैं, तो बिना हम how धर्म to पर change आश्रित रहे peace भी of mind. हम मन की शांति को कैसे प्राप्त करें, like that. इसको हम जान सकते हैं, So, समझ सकते हैं। I have some experience, तो मेरा अनुभव रहा है। including, as I mentioned earlier, including some scientists. तो जैसा कि मैंने कहा कि Now more and वैज्ञानिकों more के साथ भी मेरा अनुभव scientists रहा। Profession as a scientist, तो आज के समय में but देखें, deep जो inside वैज्ञानिक लोग they have हैं, some admiration about Buddhist or say logical approach. तो उनको that. जो वैज्ञानिक उनका व्यवसाय है, लेकिन फिर भी भारतीय never tried बौद्ध to व्यवस्था propagate जो है, Buddhism. प्रमाण है, उसके प्रति Simply रुचि दिखा रहे how हैं। much we can तो make मैंने कभी contribution उनको मैंने बौद्ध धर्म की वो एक प्रकार से peace world, peaceful आग्रह world किया हो through बौद्ध inner धर्म के peace. लिए मानने के लिए कहा, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो So here, खुद अपनी our एक Tibetan रुचि culture, दिखा रहे हैं। I feel great potential. तो मैं मानता हूँ Now, कि जो तिब्बती without संस्कृति है, Buddhist
believe बिना बौद्ध धर्म को माने भी, बौद्ध धर्म को परंपरा को माने भी, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं peace of mind. कि किस प्रकार से हम मानसिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं, ये क्षमता है। So now some questions. तो अब इसके उपरांत आप Thank you प्रश्न very much, Your उत्तर Holiness, होंगे। for your honest and important message to us. तो आपने बहुत Allow us अच्छा to now start the question part, and we're संदेश very दिया, उसके लिए grateful बहुत to बहुत have this धन्यवाद। opportunity. तो आज The जो first अवसर question प्राप्त is from हुआ है, Tracy Sitzang. She's the president of the तो Youth पहला Association प्रश्न Europe ट्रेसी and is सित्सांग, located in Switzerland. जो स्विट्जरलैंड में रहते हैं, उनकी तरफ से प्रश्न है। 강리라와 고르비신 감소 펜단데와 멀리 총회네 제레시원 덴지가 조이 샤브시테 파르토 땡교르직. That's the Your Holiness. My question to you is तो परम पावन जी नमस्कार, How मेरा can प्रश्न Tibetan है youth कि in तिब्बत Tibet में तिब्बती best युवा preserve Tibetan तिब्बत पर culture चीनी and कब्जे के religion, तहत तिब्बती especially under the संस्कृति और Chinese धर्म को occupation कैसे of संरक्षित Tibet? कर सकते हैं? Thank you. Now, at the beginning, when Chinese occupied Tibet, it was तो something different. शुरुआत में जब चीनियों ने At that तिब्बत time, पर the आक्रमण China- किया था, Chinese उस leaders, समय की स्थिति they अलग have थी। their own very strong ideology. तो उस समय के They नेताओं consider के जो सोच religion विचार is थे, opium. Or उस समय उनके अलग विचार थे और धर्म को विष मानते थे, जहर मानते थे। when I met my last meeting with the Chairman Mao Zedong, तो अंतिम बार जब माओ सेतुंग से जब मैं मिला, he told me, तो उस समय "Your उन्होंने mind कहा, उन्होंने is मुझसे very कहा था scientific minded, कि आपकी जो सोच है वो काफ़ी वैज्ञानिक and सोच then है, religion is opium." और जो धर्म है वो विष है, ऐसा मुझसे उन्होंने कहा था, और वो मानते भी थे। So that kind of thinking, तो उस in China, प्रकार की जो सोच, now much change. वो उसमें बदलाव आया Now है। today, more and more Chinese is showing interest, तो आज बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा religion, चीनी जो dharma, लोग हैं वो धर्म के प्रति particularly रुचि Tibetan दिखा रहे हैं, और Buddhist ख़ास करके tradition. जो तिब्बती बौद्ध धर्म की परंपरा है उसके प्रति रुचि दिखा रहे हैं। So, some my friend, Tibetan scholar, तो मेरे कुछ तिब्बती विद्वान some sort of teachers work in जो in कि China. चीन में शिक्षक He हैं, noticed तो उन्होंने देखा number of Chinese कि उन्होंने पाया scholars, कि बहुत सारे जो after चीनी seeing विद्वान some हैं of publication और जो पढ़े लिखे हैं, which published उन्होंने here, जो हमारी पुस्तक को and देखी eventually देखा translation also, जिसका Chinese चीनी में translation अनुवाद हुआ also है, there. उसको उन्होंने Then जब they पढ़ा saw that और समझा, then Tibetan तो Buddhist उन्होंने tradition महसूस किया कि जो is तिब्बती only, बौद्ध परंपरा है is really the Nalanda tradition. वो वास्तविक नालंदा and also परंपरा है very scientific religion. और एक बहुत ही This is true. वैज्ञानिक It is very तरीके true. वैज्ञानिक एक Our प्रकार से tradition सोच पर Not आधारित है। based on faith. तो हमारा जो through बौद्ध धर्म reasoning, है through वो reasoning. केवल श्रद्धा पर आश्रित तो ऐसा नहीं है, So, प्रमाण पर आधारित है। some Tibetan scholar who were working in Tibet, you see, they have the impression politically China control us, but spiritually तो जहाँ we तक can help them. राजनीतिक रूप से अगर देखें तो चीन ने हम पर कब्जा I किया feel हुआ है, quite true. लेकिन धार्मिक रूप से अगर देखें तो हम उनकी मदद कर रहे हैं, हम Buddhist तिब्बती लोग population चीनी लोगों की in मदद China कर रहे हैं। Much तो increasing. चीनी में अगर बौद्धों की संख्या को देखें तो बहुत ज़्यादा So, in है, any बहुत way, ज़्यादा बढ़ रही है। One way, Marxism failed. तो मार्क्सिज्म की अगर बात करें वो एक प्रकार से असफल हो रहा है, China traditionally और Buddhist country. चीन अगर So therefore, परंपरागत तौर पर now देखें more and more तो वो Chinese बौद्ध राष्ट्र है, including youth, और pay आज के more समय में attention जो युवा वर्ग about, है वो बौद्ध धर्म के Buddhist प्रति, tradition, बौद्ध परंपरा के which प्रति रुचि Tibetan, दिखा रहे हैं, culture. और हमारे जो तिब्बती Buddhist जो culture, कल्चर है, जो बौद्ध that. परंपरा है उसके So प्रति now रुचि things दिखा are रहे हैं। changing. तो अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें बदलाव आ रहा है। So in any way, the Chinese communists, they utilize their maximum pressure. तो जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट हैं वो because अपना Tibetan Buddhism जो तिब्बती completely failed. बौद्ध धर्म के विनाश के लिए पूरी तरह से एक So, प्रकार से ताकत लगा दिया, लेकिन now फिर भी obviously वो उसमें सक्षम नहीं हुए।
particularly Tibetan सफल Buddhism, नहीं हुए। now not only in Asia, तो तिब्बती बौद्ध धर्म की अगर बात करें केवल एशिया में हो ऐसी बात नहीं है, तो यूरोप में भी देखें, including some scientists, साउथ जो really showing पाश्चात्य देश उसमें भी देखें तो उसमें भी फैला हुआ है, Tibetan और Buddhist tradition. वैज्ञानिक लोग भी, कुछ वैज्ञानिक लोग भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं। So the important is Tibetan youth. तो महत्वपूर्ण बात है कि Firstly, जो तिब्बती when we युवा came हैं in India, वो ज़्यादा I asked महत्वपूर्ण हैं। Indian तो जब Prime मैं Minister, भारत में आया था उस Mr. समय Nehru, भारत के प्रधानमंत्री since we have our जवाहरलाल own नेहरू जी language, से हमने and कहा in था that कि language हमारी अपनी भाषा है is a many also the unique subject. और जिसमें बहुत सारे जो विषय We हैं should have हमारी अपनी भाषा में Tibetan हैं, school तो हमारे अपने तिब्बती and स्कूल होने study चाहिए Tibetan language. और तिब्बती And भाषा का Pandit अध्ययन Nehru करना चाहिए। fully support. और उसके लिए पंडित नेहरू जी ने So now पूर्ण रूप से today, सहमति प्रदान की। with Tibetan youth, young Tibetan, तो आज हम they have देखें opportunity कि to जो study. युवा तिब्बती Then हैं eventually वो इसको पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। re-establish Tibetan traditional top university. तो उसके बाद Buddhist, जो तिब्बती जो परंपरागत something. विश्वविद्यालय थे उसकी हमने भारत में Sometimes we स्थापना call की, Buddhist university. जो इसको बौद्ध विश्वविद्यालय भी कहते हैं। So these, since 59, many monk scholars. और 1959 के बाद बहुत सारे So these जो use तिब्बती these, विद्वान थे वो भारत में sources. आए So we और वो आकर के यहाँ re-establish शिक्षक के रूप में those, कार्य किए। as a Buddhist, और उन्होंने ही monastic आकर के Buddhist, जो हमारे जो मठ की व्यवस्था है, जो बौद्ध धर्म की tradition जो re-established. जो ट्रेनिंग की Now in जो India. सेंटर थे So at वो least भारत में now उनके 2000 भारत में पुनर्स्थापना की। monk तो उसमें student कई हजारों की continues. संख्या में भिक्षु And then, लोग अध्ययन कर रहे हैं। Some Mongolian also joined तो उसमें मंगोलिया से भी विद्यार्थी आए हुए हैं, monastic college इन study. विश्वविद्यालयों में पढ़ाई And कर some- रहे हैं। Now some Chinese also. और इसके अलावा भी So चीन के भी therefore, विद्यार्थी हैं। The young Tibetan now firstly should learn Tibetan. तो पहले And तो then, तिब्बती भाषा सीखनी होती है, We already have some फिर उसके different बाद हमारे institutions. अपने अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, अलग अलग संस्थान हैं जहाँ पर So तिब्बती can भाषा study. सिखाई जाती है, जहाँ पर वो तिब्बती भाषा सीख सकें। Buddhist logic, और इसके अलावा Buddhist जो बौद्ध philosophy, प्रमाण हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, philosophy, these बौद्ध दर्शन हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अलग अलग So that's संस्थान, the बहुत way सारे संस्थान हैं। we preserving तो इस तरह से traditional हम लोगों ने अपनी परंपरागत जो विद्या थी now already उसका रख रखाव करके रखा हुआ है। younger Tibetan who born here तो कुछ युवा study Tibetan, तिब्बती जो यहाँ then पैदा हुए eventually उन्होंने if तिब्बती you join भाषा को some of पढ़ा, our institution, तो हमारे now संस्थानों become में scholar. हमारे जो already. संस्थान हैं उसमें विद्वान So बने हुए हैं। that's proper way to preserve. तो यही हमारी संस्कृति not को, only कला older का generation, संरक्षित करने का एक तरीका है। but ऐसा नहीं है कि younger केवल जो पूर्व के to जब study पुरानी पीढ़ी थी like that. वही उसका संरक्षण कर सके, युवा पीढ़ी भी उसका संरक्षण कर सकती है और कर रही है। धन्यवाद। Thank you very much. You already mentioned it shortly, but maybe we can have a closer look to this topic. The second question focuses on the preservation of the Tibetan तो language. दूसरा प्रश्न है It is वो asked by तिब्बती in भाषा को Tibetan, संरक्षित Lobsang करने के Darje लिए from the Tibetan है। community ये in तिब्बती Germany. जो लोबसंग धारगे के द्वारा पूछा जाएगा। तो इनका प्रश्न है, दुनिया भर में तिब्बती प्रसार के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए तिब्बती भाषा को पालित करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। निर्वासन में तिब्बती संस्कृति को जीवित रखने के संबंध में आप इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं? We try wherever Tibetan or settle तो जहाँ भी तिब्बती लोग रह रहे हैं तो हम लोगों की कोशिश है कि some facility वहाँ for पर कुछ study अध्ययन Tibetan के लिए, language. तिब्बती अध्ययन के लिए कुछ व्यवस्था हो, One time कुछ सुविधा हो। I noticed in America, तो एक बार मैंने अमेरिका में ऐसा पाया I कि think Trompiska, तो टम्बिस्का friend, टम्बिस्का के जो दोस्त is a थे lady
और एक she told me उस महिला ने very मुझे purpose बताया of accepting a Tibetan refugee group तो तिब्बती लोगों को near in their एक शरणार्थी के रूप में अपने not only क्षेत्र में helping रखने की मुख्य those जो वजह है refugee कि उनकी मदद small करना मात्र refugee नहीं है community, जो एक छोटे से but we शरणार्थियों की जो very, संघ very था eager to तो हम learn लोगों की from जो Tibetan इच्छा थी tradition. वो तिब्बती परंपरा से हम लोग खुद सीख That's सकें quite true. इसलिए उन लोगों Now को many हमने यहाँ many रखा places, ऐसा उसने कहा it's where Tibetan refugee as a refugee तो बहुत सारी community जगह हैं remain, जहाँ पर भी तिब्बती many शरणार्थी people लोग रहते हैं eventually they really तो वहाँ के बहुत सारे also लोग appreciate वो प्रशंसा करते हैं Tibetan Buddhist अनुमोद culture करते हैं तिब्बती and Tibetan जो way of life, बौद्ध धर्म है very उनका peaceful. जीवन का जो रहन सहन है उसको बहुत उनकी प्रशंसा If करते some हैं necessary to fight, then we also quite bold. और कहीं झगड़े की आवश्यकता पड़े लड़ाई झगड़े तो उसके में भी हम लोग आगे हैं I think 19 in early 50s. तो 1950 के शुरुआत की बात अगर करें फिर उसके बाद 1959 की बात करें Really, number of Tibetan तो बहुत सारे very heroic. तो बहुत सारे तिब्बती लोग हुए हैं जो एक प्रकार से योद्धा के रूप में निकले हैं Or culture. लेकिन इन सब से परे हम लोगों की जो संस्कृति रही है वो शांतिपूर्ण रही है शांतिप्रिय रही है इसको हम लोग मानते हैं लोग भी मानते हैं कि So now हम लोगों की जो आदत है वो लड़ाकू प्रवृत्ति की नहीं रही है we already introduced study Tibetan, Tibetan our own school as I mentioned तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे लोग तिब्बती भाषा का after finishing संस्कृत का अध्ययन करते हैं और फिर स्कूल का अध्ययन पूरा करने के बाद study Buddhist philosophy, Buddhist logic. और जो भी Now, बौद्ध not दर्शन only lay people, not only इस monks, बौद्ध दर्शन का जो अध्ययन की बात करें वो केवल भिक्षुणियों के लिए ऐसी बात नहीं आज should study. इसमें उपासक उपासिका भी रुचि So दिखा now रहे हैं already भिक्षुड़ी को भी पढ़ना चाहिए उपासक उपासिकाओं को भी पढ़ना चाहिए तो आज जो तिब्बती रिफ्यूजी जो कम्युनिटी है also the young तो इसमें भी बहुत सारे युवा युवती भी अध्ययन कर रहे हैं भिक्षुड़ी भी अध्ययन कर रहे हैं also I appeal और इसके साथ साथ whole Himalayan मैंने जो हिमालयन क्षेत्र के लोग हैं उनसे अनुरोध किया should pay more attention. कि जो भी मठ बने हुए हैं उन लोगों को अध्ययन के लिए ज़्यादा जोर देना चाहिए Now in India we have several sort of institutions where we can study. तो भारत में बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ पर हम लोग अध्ययन कर सकते हैं शास्त्रार्थ का अभ्यास कर सकते हैं Quite well preserved. तो अगर देखा जाए हम अच्छी तरह से संरक्षित अपनी जो कला को संरक्षित करके रखे हुए हैं Lay people, ऐसा नहीं है कि केवल भिक्षु और भिक्षुणियों के द्वारा ही हो उसमें जो हमारे जो गृहस्थ लोग हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं महिलाएं भी सहयोग कर रही हैं so अपना योगदान दे रहे हैं Tibetan culture, also Tibetan language. तो तिब्बती जो think Tibetan संस्कृति है जो भाषा है They, in order to अगर इसके बारे में हम बात करें those तो sophisticated जो Buddhist जो बौद्ध धर्म के जो जटिल Buddhist logic, दर्शन है now best language is उसको Tibetan language. अच्छी तरह से तिब्बती भाषा के माध्यम से According to my own sort of व्याख्या की experience. जा सकती है मैं इसको अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित की गई है Who showing interest about और जो भी लोग इसमें ध्यान दे रहे हैं रुचि दिखा रहे हैं particularly have to pay more attention. तो उनको और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस भाषा के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इसके माध्यम से ज़्यादा सीखा जा सकता है We should not consider religion is something prayer. तो जो धर्म है वो प्रार्थना के लिए है ध्यान के लिए है Even इतने non-believer, इतने मात्र नहीं Tibetan सोचना Buddhist चाहिए tradition, इसके अलावा भी very जो जो धर्म को नहीं मानते हैं उनके लिए भी very important. जो बहुत तिब्बती बौद्ध धर्म है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है
Thank you. The next question is from Dr. Roloff. तो अगला प्रश्न डॉक्टर कोरोला रोप। Morning, Your Holiness. तो परम पावन जी, In गुड मॉर्निंग। 1973 तो already you spoke about 1973 में universal आपने कहा था, responsibility. आपने Your सार्वभौमिक Holiness, my जिम्मेदारी के question बारे में is, does कहा the था। promotion तो of मेरा the प्रश्न culture है, of क्या peace शांति की go संस्कृति beyond को बढ़ावा traditional देना Buddhist practice? पारंपरिक बौद्ध अभ्यास से परे है? As I already mentioned, secular way तो जैसा कि मैंने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष without तरीका religion. और बिना So my धर्म main approach को is रखते हुए, secular way. तो मेरा जो तरीका है वो धर्मनिरपेक्ष Include, as I mentioned earlier, include रूप में है। तो जैसा कि want मैंने peace. कहा कि यहाँ तक जानवरों को भी देखें, वो भी So शांति को चाहते we हैं। are not talking about next life. तो हम or लोग heaven. कोई जो परजन्म की बात, स्वर्ग की बात, ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। Happy तो हमारा कहना यही है कि किस प्रकार से हम जो सुखमय समाज है, and now एक everywhere सुखद समाज की स्थापना कैसे कर सकते हैं, सुखद समाज में कैसे रह सकते हैं। world peace. हम लोग विश्व शांति की जब बात करते हैं We really तो उसके लिए develop हमें world, genuine world peace. तो हम वास्तव में through विश्व की inner peace. आंतरिक without शांति के religion. माध्यम से विश्व में अच्छी शांति स्थापित कर सकते हैं। इसमें धर्म की कोई आवश्यकता ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। बिना धर्म को माने भी हम विश्व में शांति की स्थापना कर Peace सकते of हैं। mind. Only that, not religion. तो जहाँ तक मन की शांति की बात करें तो वो धर्म से ही आए, ऐसी बात नहीं है। पूर्व जन्म को सोच करके, परम जन्म के बारे में सोच करके ही बात किया जा सकता है, ऐसी बात भी नहीं है। For happy family, for happy community, peace तो of mind is सुखद seeking. परिवार के लिए, सुखद समाज के लिए मन की जो शांति वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Commitment is promotion of human और मेरी जहाँ तक एक प्रतिबद्धता है, religion, वो like that. जो करुणा है उसको एक प्रकार से बढ़ाया जा सके, उसकी और ज़्यादा से Well, I ज़्यादा wonder लोगों तक पहुँचे। whether Buddhists should also engage for peace or not. तो मैं पूछना चाहती हूँ कि बौद्ध लोगों को शांति स्थापना करने में सहयोग करना चाहिए कि नहीं? I already. Next question now. तो इसका उत्तर परम पावन दे चुके And हैं। the next question is from Dr. Stanze, तो अगला former प्रश्न German ambassador of स्टांजे, जो China फॉर्मर and जर्मन member एम्बेसडर of our और advisory जो board of the चाइना में Catholic रह Church चुके in हैं, Deutschland. जो हमारी संस्था के एडवाइजर हैं। We can't hear you. Please unmute yourself. Your Holiness, thank you very much for this opportunity. तो परम पावन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Recent Chinese तो हाल ही में efforts to absorb, सीसीपी प्रतिरोधी minority, जातीय so-called अल्पसंख्यकों की minority समस्या का cultures जवाब into the हान major, बहुमत में समाप्त करने के लिए majority Han कोशिश कर culture, रही है। which एक will जातीय succeed राष्ट्रवादी only नरसंहार by, होगा। economic क्या growth. तिब्बती बौद्ध धर्म So इस तरह my question is, इस पूरी तरह से अलग वातावरण में खुद को स्थापित करेगा या शायद यह बढ़ता भी survive or रहेगा? even flourish in an environment where maybe there is no basis in Tibetan culture anymore? Thank you. As I already mentioned, Tibetan, one important aspect of Tibetan culture तो हाल ही में मैंने कहा कि तिब्बती जो परंपरा है, संस्कृति है, उसका जो एक पक्ष है, knowledge through logical approach, उसका जो हमारी प्रमाणिक that एक पहुंच है, एक तरीका है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। now more and more basically non-believer really showing interest. तो यहाँ तक देखें, जो नास्तिक लोग हैं वो भी इसके प्रति रुचि दिखा रहे हैं। China, historically Buddhist country, तो चीन के बारे में अगर देखें तो ऐतिहासिक तौर पर एक बौद्ध राष्ट्र रहा है। Buddhist faith. With that, Buddhist knowledge, philosophy, तो Buddhist बौद्ध knowledge, दर्शन की something बात करें तो जो कि very, say, एक very प्रकार से scientific way. जो बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है, more हट more करके people है, are showing तो इसके प्रति बहुत because सारे they लोग believe इन रुचि दिखा रहे हैं। Buddhist faith
चाहे वो बौद्ध धर्म को जो पूर्व जन्म पर जन्म स्वर्ग नरक इनको माने या न माने ये अलग बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम किस प्रकार से चीज़ों को देख सकें, किस चीज़ को हम परीक्षण कर सकें। तो क्वांटम फिजिक्स जो है कोई धर्म नहीं है, showing some of the Buddhist concept. लेकिन फिर भी ये बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है उसको दिखाता है। Not objectively, independently exist. So these are तो जब हम चीज़ों का परीक्षण करते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि कोई भी चीज़ स्वभाव से सिद्ध नहीं होती है, वो एक प्रेशर आश्रित है। Buddhist logic. अगर बौद्ध प्रमाण की अगर बात करें, दर्शन की अगर हम बात करें, तो जो तिब्बती लोगों ने उसको अच्छी तरह से पूर्ण रूप से उसका संरक्षित करके रखा है, ऐसा मैं पहले ही कह चुका हूँ। More and more people who showing interest और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इसके प्रति रुचि दिखा रहे हैं, बौद्ध दर्शन के प्रति रुचि दिखा रहे हैं, सिद्धांत के प्रति रुचि दिखा रहे हैं, तो वो नैसर्गिक रूप से वो तिब्बती ज्ञान के प्रति रुचि दिखाएंगे ही दिखाएंगे। The consecutive question is addressed to you by Mr. Michael Brandt, अगला member of प्रश्न the German Parliament. मिचेल ब्रांड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। CCP's aggression and expansion तो without चीन के भीतर और बाहरी सीसीपी की आक्रामकता और विस्तार लगातार बढ़ रहा है। परम पावन जी, जब हम चीन के साथ राजनीतिक रूप से व्यवहार कर रहे हैं तो आप हमें क्या सलाह देंगे? Tisbeti marwa. Oda de. Now, there's quite a complicated question. जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो काफ़ी उलझा हुआ प्रश्न है। It depends on many factors. In any way, तो ये no matter how powerful, how great, तो चीन कितना भी श्रेष्ठ राष्ट्र क्यों ना हो, कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो विश्व का एक अंग है। peacefully with other nations. तो अन्य जो राष्ट्र है उसके साथ साथ शांति से रहना है। पहले तो भारत के साथ रहे, ना तो चीन destroy. ना ही भारत एक दूसरे को नष्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चीन भारत को नष्ट कर दे, भारत चीन को नष्ट, ऐसा नहीं है। इन दोनों को ही साथ रहना। उसी प्रकार से Even you say Taiwan. यहाँ तो उसी प्रकार से जो हमारा ताइवान के बारे में अगर बात करें तो उसमें राजनीतिक रूप से बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन चीनी जो संस्कृति की बात करें वो हजारों वर्ष प्राचीन व्यवस्था है, प्राचीन हजारों वर्ष प्राचीन पुराना है। Still kept there. So the political system can change. तो जो राजनीतिक स्थिति है उसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन जो परंपरा है तो उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं, और उसको परंपरा को नष्ट करने से भी कोई लाभ नहीं है। China politically sometimes I may say quite short-sighted. तो अगर मैं कह सकता हूँ कि चीन की जो राजनीति है वो संकुचित रूप से है, लेकिन इतनी ज़्यादा खुली सोच नहीं है। चीन को भी भविष्य में लोगों के साथ रहना है, चाहे भारत हो, चीन हो, जापान हो, बर्मा हो, वियतनाम है, सबके साथ रहना है। तो लंबे समय के बारे में सोचना चाहिए, दीर्घकालिक सोच होनी चाहिए। Humanity's way of thinking, I think early part of this century and previous century and today much change, much different. People पूर्व के समय से लेकर के आज के समय में देखें तो बदलाव आया है। लोग ज़्यादा सोच विचार, अच्छी सोच विचार वाले लोग हो चुके हैं। You see, my nation, my community, मेरा देश, मेरे जो कम्युनिटी की अगर बात करें, ये छोटी बात है। international level thinking, हमें एक व्यापक रूप से सोचना चाहिए, बड़े रूप में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सोचना की आवश्यकता है, और उस रूप में देखें तो उसमें बदलाव आ रहा है। तो ब्रेंड फैटिंग आपसे प्रश्न करेंगे।
तशदिले परम पावन जी, हम अपनी मजबूत प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए समाज को कैसे प्रेरित कर सकते हैं ताकि तिब्बत के मुद्दे पर फिर से विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित किया जा सके? I feel more people, particularly educated, मुझे लगता है कि deeper thinking खास people, करके जो चिंतन वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तिब्बती परंपरा के हमारे ज्ञान के प्रति and रुचि then दिखा रहे हैं, automatically, you see, थोड़ी चिंता विचार कर रहे हैं enthusiasm to preserve और उसके साथ साथ इस परंपरा rich को knowledge, useful एक knowledge. प्रकार संरक्षित करने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी है, Thus I feel, ऐसा मुझे लगता है। as I already mentioned, some scientists, they are not religious तो people. मैंने शुरुआत में कहा कि They कुछ are not जो pro-Tibetan. वैज्ञानिक हैं वो But कोई when तिब्बती they, नहीं हैं, ना ही वो knows, बौद्ध लोग हैं, लेकिन फिर भी part of Tibetan knowledge लेकिन फिर भी about वो human जानते हैं mind, कि जो तिब्बती human emotion, बौद्ध धर्म है, then जो they जो automatically ज्ञान है, showing interest. मनोविज्ञान है, वो बहुत महत्वपूर्ण, So इसी when की such वजह से people, when तिब्बती they परंपरा के feel प्रति रुचि रखते हैं distraction, Tibetan और culture, वो मानते हैं कि that जब kind of कभी culture, मन में विकार आते हैं तो naturally तिब्बती see people, परंपरा से, धर्म showing से लाभ more होता concern. है, इस वजह से लोग उसमें रुचि भी दिखा रहे हैं, Okay. ऐसा मेरा मानना है। The next question will be asked by Andreas तो Helmer. अगला प्रश्न a German एंड्रिया journalist. हेल्मर, जो जर्मनी के जर्नलिस्ट हैं। तो इन दिनों हर कोई इंटरनेट पर अपनी वास्तविकता प्रस्तुत कर सकता है और यहाँ तक कि नकली समाचार भी फैला सकता है। उदाहरण के लिए क्या किया जा सकता है ताकि लोगों को कोविड महामारी या जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के बारे में सच्ची जानकारी मिल सके? Now, I don't think in previous time, when people remain a little bit तो isolated, प्राचीन समय में लोग एकांकी जीवन जिया करते some थे, concerned people, अलग थलग रहते थे, false information तो कभी कभी लोग उनको see, गलत सूचनाएं दे easily देते can, थे spread. और वो आसानी से फैल सके, इतना आसान नहीं होता Now था। today, this is the source of information. तो आज के समय में अगर देखें कि सूचनाओं का जो क्षेत्र है Oh, और जो Kasa. Oh. So now, today, आज के समय में देखें कि लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, information, source of information not controlled by one तो people. जो आज की सूचना जो है एक आदमी के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल कर ली जाए, ऐसा संभव नहीं है। आजकल तो हर लोग के पास सूचनाएं पहुंच जाती हैं। So therefore, I think the people उसका सत्यापन कर सकते हैं। more, I mean, paying more sort of close watch than the wrong information. तो जितना ज़्यादा जब भी कोई समाचार मिलता है तो चाहे भले ही गलत समाचार क्यों ना हो, तो उसको आप समझ सकते हो, आकलन कर सकते हो। So now the weather condition, the global weather changing, kasa global warming. तो आज के समय में देखें जो ग्लोबल वार्मिंग की वैश्विक ताप की जो समस्या है वो हमारे बस में नहीं है। वो अपने एक प्रकार से वो प्राकृतिक रूप से भी उसमें बदलाव आ रहा है। तो कुछ वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि कुछ दशकों के बाद इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, इतने ऐसे स्तर पर पहुंच जाएंगे कि जो नदियां हैं, जो तालाब, झील हैं, वो सूख जाएंगे। उदाहरण के रूप में अभी आप देख सकते हैं कि तिब्बत के जितने भी बड़ी नदियां हैं वो तिब्बत से निकलते हैं। तो मैंने अपने जीवन में ही देखा जो बड़ी नदियां थीं
वो धीरे धीरे वो कम होती जा रही, सूखती जा रही हैं। So now, due to global warming, the और वैश्विक ताप की वजह से Tibet can be like और हो सकता है कि तिब्बत भी एक समय आपका जो अफगानिस्तान जैसा सूखा देश बन जाए, मरुस्थल बन जाए, ऐसा भी संभव है। So now that is something very serious matter. तो ये एक गंभीर विचार है, ये हमारे बस में नहीं है, एक प्रकार से हाथ से छूट रहा है। To pay more attention तो इसके साथ साथ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है as the forest और हो सके जितना ज़्यादा वन लगा सकें, ecology पर्यावरण के बारे में सोच सकें, that. इसके बारे में हमें काम करना It is चाहिए। quite serious matter. और ये quite serious. गंभीर विषय है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। Yes. Dr. Franz Alt, with whom you already have published 2 books, has तो the next डॉक्टर question फ्रांस for you. आल्ट्स, जिनके साथ आपकी 2 पुस्तकें पब्लिश हुई हैं, वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो डॉक्टर आल्ट्स, परम पावन प्रिय मित्र, हमारी साझी पुस्तक हमारा एकमात्र घर में आप लिखते हैं, तिब्बती पठार ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले 1.5 से अधिक लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। तिब्बत का पठार दुनिया की सबसे बड़ी पानी की टंकी के समान है। जल के बिना जीवन नहीं है। यदि तिब्बत के 46,000 ग्लेशियर पिघलते रहे तो हमें अकल्पनीय समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और पानी शायद भविष्य में संघर्षों का एक प्रमुख कारण बन जाएगा। क्या आप भारत और चीन के बीच पानी को लेकर युद्धों से डरते हैं, खासकर यह देखते हुए कि दोनों देशों के पास परमाणु बम हैं? Okay. Now. Yeah. Now, we already notice, the northern world, southern world. तो हमने देखा कि जो big sort of उत्तरी snow और पश्चिमी now जो क्षेत्र हैं, very rapidly तो melting. वहाँ पर जो बर्फ़ है वो बहुत ही तेज़ी से पिघल रही है। ग्लेशियर जो हैं बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। Oh, आप those river तिब्बत में भी I देखें mentioned, now gradually reducing. और वहाँ That's quite तिब्बत में की जो नदियाँ हैं serious matter. वो सूख रही हैं। ये वास्तव में एक गंभीर विषय है, गंभीर मामला है। So, now China, India, I think now, I feel, at least China, now leaders of China thinking more realistic. तो आज के समय में जो चीन के नेतागण हैं उनको एक अच्छी तरह से सार्वभौमिक तरीके से सोचना चाहिए। I don't think केवल मैं और मेरा नहीं सोचना चाहिए। तो अगर मैं और मेरा या संकुचित सोच रहेगी तो नुकसान होगा। responsibility. और इस ग्लोबल वार्मिंग का जो विषय है Responsibility. इस पर सभी लोगों की So I feel जिम्मेदारी बनती है, सबकी जिम्मेदारी है। my power. तो पूर्व के समय में मेरा राष्ट्र, मेरा बल या विस्तार, इस के बारे में सोचते थे। आज ऐसी परिस्थिति नहीं है। हमें एक प्रकार से सार्वभौमिक तरीके से सोचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। The next question is from Tenzin Chuni तो Naksa. अगला प्रश्न from तेंजिन Buckminster नाक्सांग, Eifel, and he has a special question for you, Your Holiness. My question is, तो मेरा प्रश्न है, जर्मनी में हाल ही में आई बाढ़ से मैं जिस शहर और क्षेत्र से आया हूँ वह बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हम उन लोगों को कैसे आशा दे सकते हैं जिन्होंने बाढ़ में अपना सब कुछ खो दिया है? Yes, I notice, say, the world and some part too hot. तो मैंने देखा है कि किस जगह पर
बाढ़ है, and कहीं some पर area आग जल lot रही of है, water. कहीं पर बहुत बड़ी एक प्रकार से प्रलय है, So now, बाढ़ है, कहीं आग है। इस चीज़ को मैंने The देखा only है। thing is तो केवल we इसके बारे में those हम अगर people कह who सकें suffer due to these things, तो जो लोग we इससे should, पीड़ित हैं try at least to try to show them तो कम से we कम also have हमें serious कोशिश करनी concerns चाहिए, about हमें your, दिखाना चाहिए कि मैं भी well-being. आपके प्रति, आपके भविष्य के लिए मैं These सोच people, रहा हूँ, get the हम feeling आपके साथ we हैं। are not isolated. तो ऐसे लोग There सोचेंगे are कि हम human अकेले brothers, नहीं हैं, sisters क्योंकि ये who लोग भी really, हमारे helping भाई us, बहन हैं, showing their concern for our faith. So again, important is how say the oneness of तो महत्वपूर्ण बात है कि जो 7 अरब के आसपास लोग हैं उसमें एकता होनी चाहिए। everyone is अगर to किसी show को समस्या हो तो सभी लोगों को concern. साथ साथ आना चाहिए, सहानुभूति दिखानी चाहिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Thank you. Our member Birgit Knorre has ब्रिट नोरे to ask you अब following आपसे question. प्रश्न करेंगे। आप जो आपसे प्रश्न पूछेंगे। परम पावन जी टचदिले, मेरा प्रश्न है कि जब आधुनिक शिक्षा प्रणाली अब इसे नहीं सिखाती है तो तिब्बती संस्कृति कैसे जीवित रह सकती है? Now, today's education, as I already mentioned, we should include तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि आधुनिक जो शिक्षा है उसमें मन की शांति को कैसे लाया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्रोध के समय अपने मन को बस में कैसे रह सकते हैं, करुणा का अभ्यास कैसे कर सकते हैं, किससे परहित का हम सोच सकते हैं, ये अपने विषय में हमें डालने चाहिए, अपनी शिक्षा में डालना चाहिए। जब हम इन विषयों के बारे में अगर सोचेंगे तो इनके जो स्रोत हैं, इनके जो पढ़ने के साधन हैं, तो आप देखेंगे कि तिब्बती जो हमारी संस्कृति है उसको आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप उसको पढ़ो ही, लेकिन इस हमारी जो व्यवस्था है, मनोविज्ञान की व्यवस्था है, वो तिब्बती परंपरा में बहुत अच्छी तरह से इसकी व्याख्या की गई है। तो आपको सार के रूप में यहाँ से इसको ले लेना चाहिए, सीखना चाहिए। Helmut Steckel is a long-time Tibet supporter. तो हेलमेट and he has a स्टेकल particular climate question for जो you. कि He will काफ़ी ask his समय से question in तिब्बती German. कार्ड के या तिब्बती एक प्रकार से आंदोलन में जुड़े हुए हैं, वो जलवायु से संबंध आपसे प्रश्न पूछेंगे। You have to unmute yourself, please. Helmut, du musst bitte dein Mikro einschalten und deine Frage stellen. Ja, nach dem sehr bedeutenden aktuellen Weltklimabericht जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पर्यावरण की रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को बढ़ाने में तिब्बती संस्कृति कैसे मदद कर सकती है? Wie kann die tibetische Kultur dazu beitragen, unser Engagement für den Umweltschutz zu fördern und den Klimawandel zu bekämpfen? No, a particular sort of also the knowledge about the global kasa namshi kasa global climate, these things अगर हम क्लाइमेट के बारे में बात करें knowledge, तो ऐसा नहीं है कि ये इसके बारे में तिब्बत का एक कोई विशेष ज्ञान है, इसके बारे में बहुत कुछ हम कह सकें, ऐसा मैं नहीं कह रहा। तो हालांकि हम लोग बहुत ज़्यादा हम पूरे विश्व के हित के बारे में जो बात कर रहे हैं, इस विश्व में जितने भी लोग हैं उनके हित की हम बात करते हैं। तो इसके साथ जो एक प्रकार से इस हिसाब से अगर हम देखें, मनुष्यों के बारे में अगर हम सोचें, तो ये स्वाभाविक है कि हमें इसके तो निश्चित रूप से पर्यावरण के लिए हम एक चिंता भी रखेंगे, एक विचार भी रखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग
these things. तो ऐसा नहीं है कि Tibetan केवल culture. तिब्बती परंपरा में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो, परंपरा के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। We have time for 2 more questions. तो अगले Philip दो Rumsch दो is the प्रश्न पूछे representative जाएंगे। of our youngest तो पहला regional फिलिप group located in रुमेश। Leipzig. Please, Philip, ask your question to His फिलिप, अब Holiness. आपसे प्रश्न पूछेंगे। Ashidele, Your तो Holiness, टशदिले परम पावन जी, how can young मेरे German जैसे युवा जर्मन समर्थक तिब्बती लोगों को उनके धर्म और संस्कृति के संरक्षण में सबसे अच्छी तरह से मदद कर सकता है? Thank you. Now here, simply, you see, a sense of concern and try to preserve अगर हम as a Tibetan अगर तिब्बती कलंक जो संस्कृति है one way. उसको एक तरीका से Those subjects एक विधिवत तरीके से like emotion, जैसा है उसमें आप like peace of मदद कर mind, सकते हैं। दूसरा तरीका like you say, जो हमारे मन की altruism, शांति, भावनाएं, परहित when we develop की जो these बातें things, हैं, जब इनको हम and खुद how to विकसित develop करें peace of mind, these और things, किस खुद हम then अपने मन में शांति की स्थापना the कैसे best करें, source तो ये जो है एक प्रकार से of this knowledge, इन the Tibetan. इसके ज्ञान के जो So स्रोत through that हैं way, तिब्बती माध्यम से ये interest इनके स्रोत हैं। about अगर आप Tibetan इसके culture, प्रति रुचि दिखाते हैं तो एक प्रकार से something संरक्षण करने Tibetan जैसा ही culture, होगा। separately. ऐसा नहीं है कोई when हट we करके know हो, कोई अलग से about संस्कृति emotion, हो। about peace जब of हम mind, these जब things, हमारी अपनी भावनाओं को then the best जानेंगे, source of हमारे these मन के जो things दुख हैं उनको are समझेंगे, Tibetan उनका जो हम पालन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी इसको एक प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। not for preservation of Tibetan culture. तो आप No. तिब्बती संस्कृति को आप प्रिजर्व कर रहे हैं, Or peace of mind. तो उसका प्रिजर्वेशन की बात नहीं कह रहा हूँ, For संरक्षण that की बात नहीं कर रहा to हूँ। know मन की शांति को आप करें, what कैसे मन emotion की प्रशिक्षण कर destroy सकें peace of mind. कि क्या भावना है जो हमारे That मन के subject. जो शांति है उसको And भंग कर रहे हैं। that's the source of these, और इसके जो matter, अच्छे जो Tibetan स्रोत हैं language is वो best. तिब्बती भाषा महत्वपूर्ण है, अच्छी है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। Thank you. We have one more question from तो Tenzin अंतिम Yishi. प्रश्न He is तेंजन also ईशी, part of the Tibetan Youth Association जो from तिब्बतन Germany. यूथ एसोसिएशन जर्मन के सदस्य हैं। तो परम पावन जी को त्रिवार नमस्कार। परम पावन जी, क्या आप जानते हैं कि समय के साथ संस्कृत को बदलना फायदेमंद है, या क्या आप मानते हैं कि पारंपरिक संस्कृत को बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहिए? What is your thought on that? Thank you. Now, cultural heritage, it is wrong which subject something useful for humanity, तो जो विषय मानवता के लिए लाभदायक then हो worthwhile. और फिर इसके अलावा सबके लिए वो हितकारी हो, तो उसे नहीं बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को पसंद कर रहे हैं इसलिए उसको रखना है। Which we need. तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हमें आवश्यकता है, Happy world, peaceful जिनके world, माध्यम से peaceful community. सुखमद जो सुखद विश्व बन सके, परिवार बन सके, लोगों को लाभ हो सके Peace of mind, और peace. मन की Then शांति स्थापित हो सके, more तो इनको हमें संरक्षित करने की आवश्यकता है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा as a culture or Tibetan language. जो कि That way, माध्यम से फैलाने की भी ज़रूरत होती है। language केवल तिब्बती भाषा की बात हो we love culture. Not ऐसी मात्र नहीं है कि किस वजह से कि हम उस परंपरा को मानते हैं या हमें पसंद so है the best source इसलिए हम of उसका these संरक्षण, ऐसी बात and नहीं only है। Tibetan. इससे लोगों को लाभ हो। अगर केवल इतना सोचेंगे तो केवल तिब्बतियों की बात होगी, लोगों को कैसे लाभ हो रहा है उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। तो परम पावन जी, आज सुबह आपने हमें बहुत अच्छा संदेश दिया, लोगों को संदेश दिया। इसके साथ साथ जो लोगों ने भी इस कार्यक्रम को सहयोग किया, अनुवादक लोग जिन लोगों ने निरंतर इसको विभिन्न 14 भाषाओं में अनुवाद किया, उसको सभी को धन्यवाद। तो हम आपके दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं। तो लोगों के भलाई के लिए आपकी ज़रूरत है और ख़ास करके जो तिब्बत में जो लोग रहे उनके हित के लिए आपकी ज़रूरत है। और तिब्बत में परम पावन जी पधारें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और अब अंतिम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए बोलफांग
वुल्फगांग ग्रेडर को मैं अनुरोध करती हूँ कि वो अपने धन्यवाद ज्ञापित करें। परम पावन जी, सुबह के शानदार सत्र के लिए धन्यवाद, विचारों के गहन आदान प्रदान के लिए धन्यवाद। आपके साथ रहना हमारे लिए हमेशा बड़े सम्मान की बात है। हम एक दूसरे को कई वर्षों से जानते हैं। हम आखिरी बार 2018 में दार्मस्टाट में एक कार्यक्रम में मिले थे। आपने नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं के साथ शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था और तिब्बत के योगदान के बारे में चर्चा की थी। तब से कोरोना महामारी के कारण धर्मशाला में आपके दर्शन करना मेरे लिए संभव नहीं हो सका। मुझे बहुत खुशी है कि तिब्बत पहल जर्मनी द्वारा आयोजित यह बातचीत हो सकी। सभी तिब्बत मित्रों और समर्थकों को अच्छे प्रश्नों के लिए और सुबह से ही मौजूद रहने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इतना समय देने के लिए धन्यवाद परम पावन जी। मैं आपके स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना करता हूँ। अंत में तिब्बत के हमारे दोस्तों के लिए आज ही हम भविष्य में तिब्बत के लिए मानवाधिकारों और विश्व में शांति के लिए एक साथ काम करना जारी रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. See you again. तो आप सभी का धन्यवाद। पुनः मुलाकात होगी। Okay. Thank you. Okay.